Hello CI scholars. How are you all? Must be busy in exam preparation, right? But you can do some dancing or revision for your refreshment also. So today I am going to revise you all your theory part, right? Last time we have done step movements. Before that we have done a theory part. So today also we are doing some theory part. First we will revise our last theories. Then I'll teach you next new theories. Okay. So first of all, what is Bharatnatyam? We have learned that, right? What is Bharatnatyam? What is Bharatnatyam full form? Yes, Bharatnatyam is Bharata. It is when we are separate the word, Bha means bhav, bhav is called expressions. Ra means rag, rag called singing. Ta means ताल, जो हम ताल पे जिस ताल पे हम डांस करते हैं, ताल. ताल means beat. And नाट्यम is called नृत्य. भरतनाट्यम यानी जो नृत्य एक्सप्रेशन से, अच्छी सिंगिंग से और प्रॉपर ताल से होता है उसे हम भरतनाट्यम कहते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज सौष्ठवांग. सौष्ठवांग इज you are standing straight in one line with your ear, neck, shoulder and waist is in one single line. When it becomes in one single line and you are standing in the legs joint in one hand and hand should be back. So it is your Saushtavang position. Yes, it called Saushtavang. Saushtavang position. Okay. Now what is Aramandi? Aramandi. What is Aramandi? I taught you the last steps which I am telling you all the time. Take it Aramandi and sit in Aramandi. Yes, every step, each and every step we are doing in Aramandi. Aramandi called जो हम स्टेप करने से पहले जिस पोजीशन में बैठते हैं, दोनों पैर को स्प्लिट करके अच्छे से दो हिल के बीच में हम सिर्फ 4 फिंगर्स का गैप रखते हैं, उसे हम अरमंडी कहते हैं. दिस इज ऑल योर रिविजन, दिस ऑल यू आर नोइंग. नाउ हाउ मेनी इयर्स इन भरतनाट्यम? देयर इज 7 years in Bharatnatyam. Yes, and now you are learning first year. First year called Prarambik. What is it called? Prarambik. Prarambik. Prarambik called beginners. In English you can say beginners. So in Prarambik we have already learned Tattadu and Nattadu. Okay. So I hope you all are watching their videos and you are doing your proper steps. If you cannot attempt in one time, you must be try again and again, you will be succeed. Then we have learned some mudras. Mudras called hasta and mudra. Mudras called जो मूवमेंट हम करते हैं, जिसी भी तरह का मूवमेंट होता है, चाहे बॉडी का मूवमेंट ले लो, हेड का मूवमेंट ले लो या हैंड्स का मूवमेंट ले लो. वी हैव लर्न हेड मूवमेंट. डू यू रिमेंबर दैट? इफ यू रिमेंबर यू कैन से विथ मी. ओके, गो. समम, इट इज कॉल्ड यू नीड टू सिट स्ट्रेट, राइट? समम. उद्वाहितम, अधोमुखम, आलोकितम, द्रुतम, कंपितम च, परावृतम, उक्षिप्तम, परिवारितम. Right? Do you remember? I know there are some difficult words for you. There are some new words for you. But it's okay. If you speak it slowly and you learn it slowly, you will be learn it. Then there is a sloka. Navadha Katitam Shirshya. I have taught you. Navadha is a 9 mudras. 9 शिरोबे जो हमने किए. नवधा कथितम शीर्ष्य, शीर्ष के साथ जो मुद्राएं की. नाट्य शास्त्र विशारदे. नाट्य शास्त्र की जो बुक होती है हमारे पास, भरतनाट्यम की ये नाट्य शास्त्र की बुक होती है, तो उसमें ये सारे इतिहास लिखा हुआ है, पहले से ही हमारे पास लिखा हुआ है. इसी तरह से ये सारी मुद्राएं, सारा इतिहास, सारे स्टेप इस तरह से हमारे पहले से जो गुरुजन जो सीखते हुए आ रहे हैं उन्होंने इस तरह से बुक में लिखा हुआ है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, टू द हैंड्स mudra.
वी कैन से हस्त मुद्रा, हाथ की मुद्रा जो हमने पहले सीखी थी. यू आर डूइंग विथ मी एंड सेइंग आई विल गो स्लोली विथ यू. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. हाउ यू पुट योर हैंड लाइक दिस and shoulder back, elbow up. Yes, and first is a straight hand and fingers joint. आपका हमेशा फिंगर्स इस तरह से जॉइंट होना चाहिए, कभी भी ऐसा ऐसा लूज हैंड नहीं होना चाहिए. हमेशा आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए. कभी भी आप भरतनाट्यम करते हो, जब स्टैंडिंग पोजीशन में हो तभी भी आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, तभी भी आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए. और जब बैठ के कोई मुद्रा कर रहे हो या किसी हेड मूवमेंट्स या कुछ भी कर रहे हो, whenever you are doing Bharatanatyam, you should sit straight. Okay, so start. First is pataka, next tripataka, ardha pataka, kartari mukha. You can say kanchi like this. Yes, kartari mukha, मयूराख्य, अर्धचंद्रस्य, अराल, शुकटुंडक, मुष्टिष्य, शिखराख्यस्य, कपित्थ, कटकामुख. या डू यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स? ये हमने पहले कर दिया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, ये हमने लास्ट किया कटकामुखा. नाउ पॉइंट योर फिंगर, only one finger, point out and put it aside. Suchi, it is called Suchi. Suchi means needle. Needle जो हम किसी सिलाई के काम में यूज करते हैं, it is called needle. Okay, now you just put out your thumb like this and put it like this. It is called Chandrakala. Chandrakala. You can say Chandrakala, यानी मून्स प्राइड. जो मून होता है उसकी कला, उस मून्स प्राइड. सूची, चंद्रकला. नाउ पुट योर हैंड, ओपन योर फिंगर्स, ऑल योर फिंगर्स ओपन एंड होल्ड इट लाइक दिस, like you are holding something. Okay, yeah, like you have hold any kind of ball. Yeah, any kind of ball you have holding. Put it like this. It is called Padma Kosha. Padma Kosha. Padma Kosha यानी bunch of flowers. Bunch of flowers. Full flowers का गुच्छा. ठीक है, पद्म कोशा, bunch of flowers. Next is you need to जो हमने फर्स्ट किया था, राइट, फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट था, उसको हम थोड़ा सा इस तरह से बैंड कर देंगे. सिर्फ ऊपर की फिंगर्स को बैंड करेंगे. डू यू थिंक व्हाट इज इट? इट इज लुक लाइक स्नेक, राइट? सो it is look like snake. The next mudra is a snake. So we can say Sharpa Sishata. It is called Sharpa Sishata. Right? Then lightly we are moving down. Sarpa Shishata, snake. Now next is Mruga Shishya. Mruga Shishya. जैसे हम शर्प में, संस्कृत में उसे शर्प कहते हैं, तो हमें सर्प में हमने स्नैप दिखाया. अभी मृग, मृग हम संस्कृत में काफी लोगों को पता होगा, मृग यानी हिरण, राइट? तो मृग शिष्य हम ऐसे करेंगे, 3 फिंगर्स को ज्वाइन रखेंगे, लास्ट फिंगर और थंब को आउट कर देंगे. लाइक ये मृग के दोनों सींग है, ऐसा आपको फील होगा, राइट? ऐसे हम दिखा रहे हैं मृग शिष्य, राइट? लाइक उसका मीनिंग भी हिरण का सर होता है, ये आपको हिरण के सर जैसे दिखेगा, राइट? मृग शिष्य, हिरण का सर. ओके, नाउ यू जस्ट नीड टू मूव योर थंब. हम फर्स्ट फिंगर को स्लोली ऊपर निकाल देंगे और थंब को इन दोनों फिंगर के साथ बैंड करेंगे. ओके, तो ये होगा सिंह मुख, ये होगा सिंह मुख. सी, ये ऐसा मुंह उसका बाहर निकला हुआ है और ये लायन के फेस जैसा दिखता है, तो उसे भी हम लायन का फेस का ही मीनिंग देंगे. ठीक है, सिंह मुख. इसके बाद हम करेंगे सी. दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट. हम लास्ट, सेकेंड लास्ट फिंगर को अंदर कर देंगे इस तरह से पूरा. ठीक है, यू कैन नॉट
इसके बल से हम इसको होल्ड कर देंगे, पूरा हाथ से होल्ड कर देंगे। अब ये सारी जितनी भी फिंगर है ना उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है, और उसको पीछे ऐसे ऐसे कर देंगे, लाइक डाउन, पूरा लूज छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टेल। इसे इसका मीनिंग है टेल, बट इट इज कॉल्ड कांगुल। इट नेम इज कांगुल। कांगुल कॉल्ड टेल, पुछड़ी, टेल you can say, right? कांगुल. Once again, मृगशीर्ष, सिंहमुख, then turn the finger inside, put it down, कांगुल, right? नेक्स्ट जो मुद्रा है वो सारी आपने पहले देखी होगी। इसके बाद की जो मुद्रा है वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसके साथ में ये जो हमने हमारे स्टेप में भी की हुई है, जो मैंने आपको दिखाया था, इट इज कॉल्ड अलपद्मा। ये हमने हमारे नट्टाड़ू के स्टेप्स में की है, राइट? डू यू सी? इट इज, ये हम अगर ऐसे रखेंगे तो लास्ट फिंगर को हम अंदर रखेंगे पहले, उसके बाद ये वाली फिंगर, उसके बाद ये वाली फिंगर को बैंड करेंगे। थंब अंदर नहीं आएगा, रिमेंबर दैट। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा जैसे हम 2 फिंगर दिखा रहे हैं, नहीं। थंब अगर ये सारी फिंगर्स अंदर आ रही हैं तो थंब बाहर जाएगा। इट इज कॉल्ड ग्लोन फ्लावर, पूरा खिला हुआ फ्लावर। इट इज कॉल्ड खिला हुआ फ्लावर, राइट? तो अगर ये ऐसे हो जाएगा तो फ्लावर बंद हो जाएगा, तो हम थंब को आउटसाइड करेंगे और बाकी सारी फिंगर्स को इनसाइड करेंगे। फिंगर्स क्लोज नहीं होगी, बैंड नहीं होगी, फिंगर स्ट्रेट होगी और हम इसे ऐसे रखेंगे, ठीक है? व्हाट इज इट कॉल्ड? अला पद्मा। अला पद्मा, पद्मा मीन्स फ्लावर, अला मीन्स पूरा, अला पद्मा, पूरा फ्लावर खिला हुआ। नेक्स्ट इज चतुर। जैसे हमने ये मुद्रा की थी, ठीक है, जिसमें हमने थंब बाहर रखा था, और ये कौन सी मुद्रा है बोलो? मृगशीर्ष। अभी हमने किया मृगशीर्ष। तो जैसे हम मृगशीर्ष में किया था वैसे अब इसको थंब को अंदर रख देंगे। कहां पे? इन तीनों फिंगर्स के पास। थंब की हमें इस मुद्रा में कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे रख देंगे और इसको सीधा रखेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इजी वे टू अंडरस्टैंड, इसको हम सीधा रखेंगे। इट इज कॉल्ड चतुर। इट इज कॉल्ड चतुर। द मीनिंग इज यू कैन शोइंग अ 4 और स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर शेप दिखाना है किसी स्टोरी में, अगर आपको किसी डांस करते वक्त स्क्वायर दिखाना है या 4 दिखाना है, तो यू कैन डू दिस मुद्रा। लेटर ऑन when you are going in higher standard, it will really helps you. Okay, it is called chatura. So once again, alapadma, chatura. Next is very simple. So फर्स्ट फिंगर को आपको इसके साथ नहीं रखना है, अंदर फोल्ड कर देना है। जैसे हमने ये वाली फिंगर को अंदर फोल्ड किया था, वैसे अब फर्स्ट फिंगर को इस वाली जगह पे फोल्ड कर देना है, अपने थंब के बीच में। गेट इट? ये हो गया सबका। नाउ द नेक्स्ट फिंगर को हम थंब के साथ ज्वाइंट कर देंगे। सी, ये क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? इट इज कॉल्ड भ्रमरश्चैव। भ्रमरश्चैव। इट इज कॉल्ड हनी बी। यू कैन कॉल हनी बी। भ्रमर यानी हनी बी। Okay, भ्रमरश्चैव. Let's have quick revision of our Hasta Mudras from the starting. Do with me. Pataka, Tripataka, Ardhapataka, Kartari Mukha, Mayurakhya, Ardhachandrasya, Arala, Shukatundaka, Mushtisya, Shikharakhyasya, Kapitha, Katakamukha, सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशीर्षता, मृगशीर्ष, सिंहमुख, कांगुलो, अलपद्मक, चतुर, भ्रमरश्चैव,
So that's it for today. I hope you will learn it. See, when you're learning something new, as well as जितना important प्रैक्टिकल है उतना ही इम्पोर्टेंट थियोरी पार्ट है. ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा. इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन क्लासिकल, इट विल रियली हेल्प्स यू एंड वी विल लर्न वेरी स्लोली, अंडरस्टैंडिंगली. हम आराम से जाएंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आई होप यू विल डू दिस एंड नेक्स्ट वीक we will do some new steps. So till then, bye bye.